Good mo- uh, um, uh, Welcome viewers. I am Professor S. Singh, Department of Physics, retired teacher, St. Columba's College. I have come before you earlier also so many times, that is black hole, describing the black hole, atom bomb, hydrogen bomb, etc. But today I will give you some conceptual idea about time, which is the very important ingredient of the universe. Time is very important ingredient of the universe. But before saying anything about time, I will tell you the number with which the object or the things with which the whole universe is made up of. It is very difficult. There are so many innumerable numbers of articles, innumerable number of things in this universe, such as our body, the earth, the ocean, the sun, the moon, the gold, silver, grains such as wheat, rice, and so many, the tree, the clothes. So it is very difficult to enlist the name of things with how many things this whole universe is made up of. But you will get surprised to know the number, which I will tell you, that the whole universe is made up of only three things. The whole universe, not our earth, whole universe is made up of only three things: space, time, and matter. Space, time, and matter. And there is no fourth thing. The space is also a very necessary ingredient of this universe. If there is no space, how our body will exist? Our body has taken some space. How anything, even if it is a grain of sand, बालू का एक छोटा सा कण है, उसको भी कुछ जगह चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए. देयर इज ए बिग माउंटेन, इट ऑल्सो नीड सम स्पेस. द अर्थ, इट ऑल्सो नीड सम स्पेस टू एग्जिस्ट. सो द होल यूनिवर्स हैज़ द रिक्वायरमेंट और नेसेसिटी और एसेंशियलिटी of a space to exist. So a space is the number one necessity of the universe. ब्रह्मांड के लिए स्पेस सबसे पहला इम्पोर्टेंट. नंबर टू, टाइम. द टाइम के विषय में तो मैं अभी बताऊंगा. इसमें एक टॉपिक मेरा है एसेंशियलिटी ऑफ टाइम भी है, नंबर टू. नंबर टू इज एसेंशियलिटी ऑफ टाइम. उसमें बताएंगे टाइम के बिना कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. आवर बॉडी और एनीथिंग, द यूनिवर्स कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट, देयर कैनॉट बी यूनिवर्स विदाउट टाइम. वी कैनॉट इमेजिन द यूनिवर्स विदाउट टाइम. नाउ दो चीज़ हो गया. नंबर थ्री मैटर. वॉट एवर वी सी इज मैटर. वॉट एवर वी सी इज मैटर, वेदर इट इज़ ग्रेन लाइक व्हीट एंड राइस, or it is metal like gold, silver, iron, also, or our body, tree, sun, moon, earth, all are matter. All come within the purview of matter. So there cannot, without all the things which we see in this universe comes under the purview of matter. So there are three things: space, time, and matter, of which the whole universe is made up of. Now, of these things, I have taken today the time. The time को डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे, and to describe it for my convenience, to describe time for my convenience, I have made some points. I have made these points for my convenience. I have not borrowed it from any magazine, any book, or any paper. I have made on own.
exclusively I have made it by my own. There may be more points. Here there are 11 points, there may be more points, 12 points, 13 points, 15 points, there may be. But I have made 11 points, and point by point I will go to explain the things, because sometimes I forgot something. So that's why I have made points, so that I may not forget the important points. So now, number one, what is time definition? What is time definition? टाइम क्या है उसका डिफिनीशन बोलिए, टाइम की परिभाषा बोलिए। टाइम की परिभाषा देख लीजिए। द फ्लो ऑफ मोमेंट, मोमेंट माने होता है हिंदी में क्षण। द फ्लो ऑफ मोमेंट्स, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मोमेंट एंड यूनिडायरेक्शनली, द कंटिन्यूअस एंड यूनिडायरेक्शनली फ्लो ऑफ मोमेंट्स इज कॉल्ड टाइम। क्षणों का बहाव, एक दिशा में क्षणों का बहाव लगातार, विदाउट एनी ब्रेकेज, दैट इज कॉल्ड टाइम। एज द वाटर फ्लोज इन रिवर विदाउट एनी ब्रेकेज, अब कोई काट देगा नदी वो दूसरी बात है, बट इन द रिवर वाटर फ्लोज विदाउट ब्रेकेज। एज द वाटर फ्लोज इन द रिवर, सो द टाइम इज फ्लोइंग, मोमेंट्स आर फ्लोइंग। मोमेंट रिप्रेजेंट the drop of water. So the whole water is flowing. It is made up of drops. So the whole time is flowing. It is made up of moments. क्षणों का बहाव जो है एक दिशा में continually, this is called time. So the unidirectionally and continuously flow of moments is called time. So this is the definition of time. Now number two, essentiality of time. क्या ज़रूरी है? एक मित्र ने हमें कहा टाइम नहीं रहता तो क्या होता, तो टाइम नहीं रहता तो क्या होता। सो देखिए, एसेंशियलिटी ऑफ टाइम नंबर टू, इट इज़ वेरी एसेंशियल। इफ़ देयर इज़ नो टाइम वी कैनॉट ड्रीम ऑफ द यूनिवर्स। If there is no time, there cannot be universe, because we are existing in time. अभी समय है, जो हमारा शरीर है, आपका शरीर है, अभी समय है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। कल भी समय था जो हमारा शरीर एग्जिस्ट किया, आप एग्जिस्ट किए, और पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट किया। कल भी कुछ समय था। The thousands and thousands of years ago, the battle of Mahabharat was fought. That was also time. उस समय भी कुछ समय था। 6.5 crore years before, prior to now, the dinosaurs were roaming on the surface of the earth. डायनासोर घूम रहे थे अर्थ पर। कब? 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। उसमें में टाइम था, बिना टाइम का नहीं था। तो टाइम नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। हम लोग हैं अभी तो टाइम है, जिस तरह हम लोग हैं तो स्पेस में ही हैं, लेकिन टाइम भी नहीं रहता। अभी तो टाइम है, कल भी हम लोग रहेंगे तो कुछ टाइम रहेगा। क्लियर? सो द टाइम इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द होल यूनिवर्स टू एग्जिस्ट। इफ़ देयर इज नो टाइम देयर कैनॉट बी एनी यूनिवर्स। यूनिवर्स नहीं रह सकता, ब्रह्मांड नहीं रह सकता, बिना टाइम का ब्रह्मांड नहीं रह सकता है। ठीक है। सो दिस इज द एसेंशियलिटी ऑफ मैटर। टाइम इज़ द फोर्थ डायमेंशन। हम लोग जानते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया में 3 डायमेंशनल है। एक्स वाई जेड, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। मोटाई बोलिए या हाइट की। ये रूम है, इसमें भी लंबाई है, चौड़ाई है और हाइट मोटाई है। हमारा शरीर है, लंबाई है, चौड़ाई है, ये थिकनेस है। यह रॉड है, इसमें भी लंबाई है, चौड़ाई है, या थिकनेस है, या मोटाई है, या जो कुछ बोलिए। सो इवन इफ देर इज ग्रेन ऑफ सैंड, इवन इन द ग्रेन ऑफ सैंड देर इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस एग्जिस्ट कर रहा है। वेदर इट इज़ ए ग्रेट माउंटेन, बिग माउंटेन, और ए ग्रेन ऑफ सैंड, all the 3 axes x, y, z are existing. Now what is the fourth dimension? But time is taken as fourth dimension. पहले fourth dimension
नहीं था, कंसेप्ट नहीं था। आइंस्टीन ने कहा टाइम इज़ द फोर्थ डायमेंशन। कहीं कोई घटना हुई, इसको इस ईजी वे में समझिए, कहीं कोई घटना हुई तो जगह स्पेसिफाई करेंगे तो वहाँ तीनों एक्सिस आया, एक्स वाई जेड, लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड हाइट, किस जगह पर घटना हुई। लेकिन फिर कौन समय में हुई, 2 दिन पहले हुई कि 2 साल पहले हुई घटना। एक एक्सीडेंट हुआ था, इसमें एक व्यक्ति मरा, तो 2 दिन पहले कि 2 साल पहले कि 10 साल पहले, तो यहाँ आता है टाइम। सो along with x, y, z, which is called space axis, these are called space axis, उसके साथ टाइम एक्सिस भी है ना। कंसेप्चुअली इट इज़ कंसेप्चुअली द एक्सिस ऑफ टाइम, एक्स एक्सिस इधर होता है तो वाई एक्सिस, देयर आर ऑर्थोगोनल, जेड एक्सिस से आप लोग जानते हैं, पढ़े लिखे जो भी हैं, एक्स वाई जेड। लेकिन व्हाट इज़ द एक्सिस ऑफ टाइम? द टाइम का एक्सिस कंसेप्चुअल है एंड इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ऑल दीज एक्स टाइम स्पेस एक्सिस। एक्स वाई जेड तीनों पर उसका एक्सिस परपेंडिकुलर रहता है, इट इज कंसेप्चुअल। सो विदाउट टाइम एक्सिस is also essential. So time is considered as the 4th dimension. Now time is relative. टाइम, पहले टाइम को एब्सोल्यूट माना जाता था। एब्सोल्यूट का मतलब समझिए, डबल एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का हिंदी शब्द है परम। तो व्हाट डू यू मीन बाय परम, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट का मतलब है दैट विच कैनॉट चेंज इन एनी सर्कमस्टांस। एब्सोल्यूट मीन्स दैट विच कैनॉट चेंज इन एनी सर्कमस्टांस। अभी यहाँ है तब भी 1 किलो, दूसरा जगह चांद पर चल जाएगा तब भी 1 किलो, भले उसका ग्रेविटी अलग है। दूसरा चला जाए इलाहाबाद में चल जाएगा 1 किलो, दिल्ली में चल जाएगा। दैट विच कैनॉट चेंज इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। तो 1 घंटा, हम लोग टाइम का कंसेप्ट यही था कि 1 घंटा जो मेरे लिए है सबके लिए 1 घंटा होगा। वो अमेरिका में रह रहा आदमी, चांद पर रह रहा है आदमी, या और भी कोई दूसरे ग्रह पर रह रहा है, 1 घंटा सबके लिए 1 घंटा है। नो, रिलेटिविटी में आया, आइंस्टीन ने कहा नो, द टाइम इज रिलेटिव, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिव, इट डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांस। तो कैसे उन्होंने सिद्ध किया? देखिए, टाइम इज रिलेटिव। 2 एग्जैक्टली इक्वल क्लॉक उन्होंने लिया, 2 एग्जैक्टली इक्वल क्लॉक, वन इज फिक्स इन ए स्पेसशिप, वन इज फिक्स इन ए स्पेसशिप, द अदर रिमेन ऑन द अर्थ। द स्पेसशिप, द क्लॉक, द स्पेसशिप वेंट with tremendous speed in the space and comes comparable to the velocity of light. Comparable का मतलब समझिए, equal to velocity of light हम लोग नहीं जा सकते हैं, but comparable हो सकते हैं। Comparable का मतलब उसका आधा या 1/4, something like that. So comparable to velocity of light is that spaceship goes into space and return just after 1 hour. It takes off at 10 and lands just at 11. जस्ट एट 11। यहाँ का घड़ी वैसा ही रखा हुआ है जो एकदम सिमिलर है। यहाँ अगर देखता है 11:02, 11:02 वेयर फ्रॉम 2 मिनट, 2 मिनट कहाँ से आया? रिलेटिविटी, रिलेटिव, टाइम डायलेट कर गया। दूसरा एग्जाम्पल, 2 पौधा लिया गया, एकदम इक्वल हाइट का 2 पौधा और इक्वल क्वालिटी का, इक्वल एक ही तरह का, एक ही काइंड का, आम का हो, इमली का हो, किसी भी चीज़ का हो, पौधा लिया गया, छोटा पौधा एकदम इक्वल बराबर। वन वाज फिक्स इन ए स्पेसशिप एंड वन रिमेन ऑन द अर्थ। स्पेसशिप चला गया, 1 हफ्ता के बाद आया विथ ट्रेमेंडस स्पीड। हाँ, देखा गया कि छोटा रह गया जो अर्थ पर था। दैट प्लांट विच रिमेन ऑन द अर्थ इज विथ ग्रेटर हाइट है। तो रिलेटिविटी, सो टाइम दोनों के लिए, टाइम एक नहीं रहा। 1 घंटा हम सोचते कि दोनों के लिए बराबर होगा, 1 हफ्ता वो 1 हफ्ता ही, ये ज़्यादा बढ़ गया वो कम बढ़ा, ठीक है। सो द टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिव। एक और एग्जांपल दिया जाता है समझाने के लिए, ऑल्दो इट इज वेरी क्रूड एग्जांपल। देयर वाज ट्विन मैंने जोड़ा भाई थे। एक भाई स्पेस में गया,
स्पेसशिप में गया, हिट ट्रेमेंडस स्पीड कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और 15 दिन के बाद वापस आया लौट करके, दूसरा बार अर्थ में रह गया। तो घर पर आया तो घर पर दौड़ करके गया, 15 दिन के बाद आया था, और 10 दिन के बाद में 15 दिन में उसको कोई चेंजेस नहीं आया था, खाली दाढ़ी उड़ी थोड़ा सा बढ़ा था, कोई चेंजेस नहीं आया। दौड़ के गया, अरे पिताजी, हम आगे दौड़ के अखबार के, तो वो बोला, अरे हम तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, हम तुम्हारा भाई हैं। जिसको पिताजी समझ रहा था वो उसका भाई बूढ़ा हो गया था, नाती पोता वाला हो गया था। ही रिमेन ओनली फॉर 15 days इन द स्पेसशिप, और ये 30-35 साल इसका हो गया, नाती पोता वाला हो गया, 3 ब्रदर। तो इसको बताया जाता है एग्जाम्पल के वे में कि कितना टाइम जो है सो टाइम इज़ नॉट रिलेटिव। इसके लिए 15 दिन खाली दाढ़ी बढ़ा, और ये नाती पोता वाला हो गया ना, बूढ़ा हो गया, दूसरा ट्विन ब्रदर। सो टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट। Number 4, time is relative. Now fifth point, time, arrow of time. What do you mean by arrow? Arrow का मतलब तीर होता है, तीर का मतलब डायरेक्शन। What is the direction of time? किसको पॉजिटिव मानेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सब ज्योमेट्री हम लोग बना कर बैठे हुए हैं कि इधर एक्स एक्सिस प्लस तो इधर माइनस, इधर प्लस वाई तो माइनस प्लस, इधर जेड प्लस तो इधर जेड माइनस, इस तरह से बना के बैठे हैं। तो हम टाइम का एक डायरेक्शन पॉजिटिव किधर लेंगे? तो समझिए, एक क्वांटिटी है थर्मोडाइनमिकल क्वांटिटी, जो सब नहीं जानते हैं, जो थर्मोडाइनमिक्स पढ़े हैं, हीट पढ़े हैं, वही जान। एंट्रोपी, द पॉजिटिव, इसको मेरा ये सेंटेंस ठीक से आप गौर कीजिएगा। द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम is that direction in which the entropy of the universe increases. ठीक है, I am repeating again. The positive direction of time is that direction in which the entropy of the whole universe increases. Entropy इज ए क्वांटिटी, थर्मोडायनामिक क्वांटिटी। उसको समझाने के लिए, जनरल आदमी को समझाने के लिए एक दूसरा उपाय है डिजऑर्डर। द ग्रेटर द डिजऑर्डर, ग्रेटर द एंट्रोपी, लेसर द डिजऑर्डर, लेसर द क्वांटिटी। इसको एक एग्जांपल बता देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। 10 लड़के हैं, 10 के कतार में खड़े हुए हैं, 10 इधर 10, तो 100 लड़के हैं, तो 10 कतार हुआ तो 100 लड़के एकदम एक साल लाइन में, तो एकदम अरेंज्ड हैं तो एंट्रोपी इज लिस्ट, एकदम अरेंज्ड है तो एंट्रोपी इज लिस्ट। दो रो जो है डिस्टर्ब हो जाता है तो एंट्रोपी थोड़ा इंक्रीज कर दिया। अब सब अगर डिस्टर्ब हो गया, सब लड़के इधर उधर हो गए, सब लाइन तोड़ दिया, इधर हो गया, तो एंट्रोपी बिकम्स मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए, यूनिवर्स जो है डे बाय डे इसका एंट्रोपी बढ़ रहा है, डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है। वहाँ सुपरनोवा एक्सप्लोड किया, यहाँ नोवा एक्सप्लोड किया, वहाँ कोई तारा फटा, कोई और कुछ हुआ, कोई अर्थक्वेक हुआ। सो ऑलवेज देयर इज डिस्टर्बेंस इन दिस होल यूनिवर्स। खाली अर्थ पर, इन होल यूनिवर्स देयर इज डिस्टर्बेंस। सो देयर इज डिस्टर्बेंस मीन देयर इज डिसऑर्डर। So disorder is increasing in the universe day by day, hour by hour. So this is the positive direction of time. This is the positive direction of time. Number 2, दूसरा उदाहरण देते हैं, in which the universe is expanding. Everybody knows that our universe is not static. गोलाकार जरूर है, but it is not static. It is increasing, it is expanding. जैसे बैलून जो है सो फूल रहा है, धीरे धीरे बैलून बच्चा लोग फुलाता है, धीरे धीरे फूलता है। Likewise, the whole universe is expanding like this. So the positive direction of time is that direction in which the universe is expanding. ठीक है, तो दो तरीका लिया जा रहा है। डायरेक्शन ऑफ टाइम, ये डायरेक्शन ऑफ टाइम बन रहा है कि किस डायरेक्शन को, अगर सिकुड़ेगा यूनिवर्स तो नेगेटिव डायरेक्शन होगा, एंट्रोपी अगर घटेगा तो नेगेटिव डायरेक्शन होगा, माने ठीक है, एरो ऑफ टाइम हो गया।
अब आइए 6 पॉइंट. I am going hurriedly because you become impatient. You, the viewers, become impatient. 5 घंटा 6 घंटा धूप में बैठे हुए हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं और टीवी देख रहे हैं 7 घंटा 8 घंटा एकदम चिपके हुए हैं. वहाँ बोरियत नहीं होती है, वहाँ बोरियत नहीं होती है. एक्सक्यूज़ मी. और यहाँ ज्ञान की बात बताते हैं तो बोर लग रहा है, बोर हो रहा है. सो डोंट फील लाइक दैट. इस पर और बहुत कम लोग आपको बतलाएंगे. मैं बोस्ट नहीं कर रहा, आई एम नॉट बोस्टिंग. टाइम के विषय में ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे. चलिए आइए. व्हाट विल हैपन ना डायरेक्टर, व्हाट विल हैपन इफ़ टाइम गोज बैकवर्ड. अगर बैकवर्ड चलेगा, इट इज़ वेरी सिंपल. टाइम बैकवर्ड जाने लगेगा, व्हाट विल हैपन? इट विल बी जस्ट लाइक it will be just like a reverse cassette, video cassette, reverse video cassette. Everything will go backward, है ना. जैसे कभी कभी क्रिकेट मैच में दिखाता है बॉल आया यहाँ, फिर इधर दिखलाने के लिए इधर ये टच किया कि नहीं बैट में, तो ऐसे आता है फिर ऐसे. सो एवरीथिंग, जितनी गाड़ियाँ हैं सब पीछे चलने लगेगी. नदी का बहाव उल्टी हो जाएगा, वर्षा का पानी तालाब से उठ करके ऊपर चला जाएगा. ठीक है. सन विल बिगिन टू राइज इन वेस्ट. पश्चिम में सन सूर्योदय होगा और पूरब में डूबेगा, क्योंकि द अर्थ विल गो इनटू अपोजिट डायरेक्शन. क्लियर. वी विल सीन वॉमिटिंग, वी विल सीन वॉमिटिंग. उल्टी, हर व्यक्ति उल्टी करता हुआ नजर आएगा. वाई? उल्टी क्यों करता हुआ नजर आएगा? देखिए, हमारे पेट में अभी जो खाना है, ये खाना है, कुछ देर पहले कहाँ था? थाल में था, प्लेट में था. टाइम इज़ गोइंग बैकवर्ड, टाइम इज़ गोइंग बैकवर्ड. अगर अभी 12 बजा है तो फिर 11 बजेगा, फिर 10 बजेगा. 11 बजे तो खाना हमारा पेट में नहीं था, प्लेट में था 12, और 10 बजे तो हड़िया में था. तो इसलिए एवरीबॉडी विल बी सीन वॉमिटिंग, उल्टी करते हुए नजर आएंगे सब, जब व्हेन टाइम विल गो बैकवर्ड. व्हाट विल हैपन इफ टाइम स्टॉप्स? 7 नंबर 7, पॉइंट नंबर 7. व्हाट विल हैपन व्हेन टाइम विल स्टॉप? वेरी हैजर्डस सिचुएशन, वेरी हॉरिबल सिचुएशन. लोग बोलते हैं पूछा टाइम रुक जाएगा. हम घर में भी पूछते हैं, अगर रुक गया टाइम तो क्या होगा? क्या हो, जैसे हम लोग हैं वैसे बने रहेंगे, जैसा अभी देख रहे हैं वैसा ही होगा, है ना. नो, द सिचुएशन विल बी वेरी हॉरिबल, वेरी हैजार्डस, बहुत खतरनाक. व्हेन टाइम विल स्टॉप, एवरी मोशन ऑफ द यूनिवर्स विल स्टॉप. देखिए, इसको ठीक समझिए. व्हेन टाइम विल स्टॉप, every motion of the universe will stop. every motion will stop हो जाएगा, तब क्या होगा? the light will not come from here to here, the light will not come from sun to us. हम लोग जो चित्र देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, क्यों देखते हैं? उस पर लाइट पड़ता है, उस लाइट से उसका चित्र हमारे रेटिना पर बनता है, एंड देन वी सी समथिंग. वो आदमी रहे, चित्र रहे, पेड़ रहे, कुछ भी रहे, देखते हैं. लाइट विल नॉट ट्रेवल, बिकॉज व्हाई नॉट ट्रेवल? बिकॉज द टाइम इज स्टॉप. समय रुका हुआ है, लाइट ट्रेवल नहीं करेगा तो हम अंधे हो जाएंगे. हमारा चित्र, कोई भी चित्र नहीं बनेगा, कोई चित्र नहीं बनेगा. लाइट में चला जाता है. रात में रूम में हम बैठे हुए, कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, कोई लाइट नहीं है. क्यों? सब चीज़ है, लेकिन देख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि चित्र हमारे रेटिना पर नहीं बन रहा है. इमेज इज नॉट फॉर्मिंग ऑन द रेटिना ऑफ आवर आई. क्लियर. तो इसलिए हम अंधे हो जाएंगे, हम बहरे हो जाएंगे, हम बहरे भी हो जाएंगे. द साउंड विल नॉट कम टू अवर ईयर. कोई भी उधर हमको कितने जोर से चिल्लाएगा, द साउंड विल नॉट कम टू अवर. सो वी विल बिकम ब्लाइंड, वी विल बिकम डेफ, एंड वी विल डम ऑल्सो. डम माने गूंगा हो जाएंगे, कुछ बोल नहीं सकेंगे. चिल्लाना चाहेंगे, किसी को बुलाना नहीं चिल्ला सकेंगे, बोल ही नहीं सकेंगे. क्यों नहीं बोल सकेंगे? हमारा लिप नहीं खुलेगा. बोलेंगे से मुंह खुलेगा तब ना बोलेंगे. आवर लिप
विल नॉट ओपन। बोले लिप क्यों नहीं खुलेगा भाई? इट विल रिक्वायर टाइम, टाइम इज स्टॉप। ठीक समझिए इसको, टाइम रुका हुआ है, लिप नहीं खुलेगा मुंह का, तो लिप खुलेगा ही नहीं तो बोलेंगे कैसे? तो हम अंधे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, गूंगे भी हो जाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल बताते हैं, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। अगर बाई चांस ऊपर आम का पेड़ से कोई पका हुआ आम गिर रहा है, और आधा दूर पर आया है, आधा दूर पर आ चुका, और उसी समय टाइम रुक गया, टाइम पहले नहीं रुका हुआ था, जब आम आधा दूर पर आया, टाइम स्टॉप, देन व्हाट विल हैपन? द मैंगो विल रिमेन हैंगिंग देयर, गिरेगा नहीं ज़मीन पर, न ऊपर जाएगा न नीचे, जहाँ तक आ गया वहीं रुका रहेगा। क्लियर? सो इट इज़ कंसेप्चुअल। इफ टाइम स्टॉप्स, एवरी मोशन ऑफ द यूनिवर्स विल स्टॉप। कोई ट्रेन नहीं चलेगा, कोई बस नहीं, कोई आगे पंखा घूम रहा नहीं घूमेगा। नो मोशन एट ऑल इन दिस यूनिवर्स, सो it will be a dead horse, the whole universe will be a dead horse plunged into darkness। ठीक है, तो ये हो गया स्टॉप्स। अब आइए बड़ा मुश्किल वाला चीज़ है भाई, बर्थ ऑफ टाइम। 8वां बर्थ आ रहा है ना? ठीक, बर्थ ऑफ टाइम। एक आदमी बोला पागल है, कहा जी टाइम जन्म नहीं करती। हमको पागल बोल दिया, पागल हैं। तुम समझाए, आप ही मत समझिएगा पागल हमको। बर्थ ऑफ टाइम, टाइम का भी जन्म हुआ है। टाइम हैज़ ऑल्सो टेकन बर्थ। यहाँ ठीक समझिए, एवरीथिंग इज कंसेप्चुअल, लेकिन समझने की बात है भाई। टाइम हैज़ ऑल्सो टेकन बर्थ। द टाइम वॉज बोर्न, be very attentive, the time was born when universe was born, when time was born when universe was born, both universe as well as time were born simultaneously, एक ही साथ जन्म हुआ दोनों का। तब फिर फर्दर प्रश्न आता है, when universe was born, when universe was born, the universe was born almost 14 billion years ago। 14 अरब वर्ष पहले हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। कैसे जन्म हुआ वो जान लीजिए। देयर वॉज ए प्रीमोडियल पॉइंट, सुपर कंडेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, सरसों का दाना के जैसा एक सुपर डेंस ऑब्जेक्ट था। बाय समहाउ और अदर एक्सप्लोडेड, दिस इज कॉल्ड बिग बैंग। अभी भी थ्योरी जारी है बिग बैंग। दैट सरसों का दाना के जैसा जो ऑब्जेक्ट था, सुपर डेंस, बाय एनी रीजन, बाय एनी कॉज, इट एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ। इट इज कॉल्ड महाविस्फोट, बिग बैंग। बैंग माने एक्सप्लोजन, बिग बैंग, और यूनिवर्स फॉर्म किया। क्लियर? उसी का फैलाव अभी भी जारी है, अभी भी जारी है। वो कब फटा था सरसों का दाना? 14 अरब वर्ष पहले। जान लीजिए, सरसों का दाना फटा था 14 अरब वर्ष पहले, 14 बिलियन ईयर्स। बाई चांस अरब और बिलियन एक ही चीज़ है, एक ही वो लोग का वैल्यू एक ही है। अरब इधर गया, उधर बिलियन आया। 1000 मिलियन इक्वल टू 1 बिलियन, तो एक मिलियन, 1 बिलियन बराबर 1 अरब। 14 अरब साल पहले वो सरसों का दाना एक्सप्लोड किया, उसी से ही ब्रह्मांड बना। और जैसे वो एक्सप्लोड किया, मैटर आया, एंड देन एंड देयर टाइम भी आ गया। जैसे मैटर आया, टाइम भी आ गया। टाइम का जन्म एकदम एक ही साथ, साइमल्टेनियसली। तो एक प्रश्न आया मेरे पास, मैं खुद प्रश्न करके आपको समझा देता हूँ। फिर बोले का उसके पहले टाइम नहीं था? जब संसार ब्रह्मांड बना उसके पहले टाइम नहीं था? नहीं, टाइम का जन्म तो अभी हुआ। तो उस समय टाइम क्या करता, इसको समझिए, वेरी कंसेप्चुअल। यूनिवर्स के पहले टाइम क्या करता? कहाँ घटनाएं होती, कहाँ नापा जाता? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, बोलिए। कहीं घटना घटती ही नहीं। देयर वाज नो मैटर एट ऑल इन द यूनिवर्स।
यूनिवर्स का जन्म हुआ ही नहीं था, तो उसको कहाँ मिलता घटना नापने के लिए। सो इफ देयर वॉज नो टाइम एट ऑल, द टाइम वॉज बोर्न व्हेन यूनिवर्स वॉज, टाइम का कोई एग्जिस्टेंस उसमें नहीं था, टाइम इसमें पैदा नहीं हुआ था। ब्रह्मांड के पहले टाइम पैदा नहीं हुआ था। टाइम कब आया? जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जब ब्रह्मांड जन्मा तो साथ ही साथ समय भी जन्मा। ठीक है, साइमल्टेनियसली बोथ वे आर बोर्न। नाउ बारिश में समय नहीं देंगे। नाउ आ गया डेथ ऑफ टाइम। ये सब पागलपन वाला क्वेश्चन है, डेथ ऑफ टाइम। तो देखिए, नंबर 1 कि जो भी चीज़ पैदा होती है, जो भी चाहिए वो मरना निश्चित है। जो भी चीज़ पैदा होगा वो छोटा, मच्छर जन्म लेता है, कुछ घंटा में मर जाता है, एक आध दिन में मर जाता है। हम लोग का लाइफ होता है 70, 80, 90, 100 तक भी जा सकते हैं। हाँ, सूर्य तारा का लाइफ अरबों साल होता है, लेकिन एक दिन तारा भी मरेगा, एक दिन सूर्य भी मरेगा। हम लोग अजर अमर इसलिए उसको बोल देते हैं, बहुत लंबी आयु है उसकी। लेकिन वन डे द सन विल डाई, वन डे द मून विल डाई, वन डे द अर्थ विल डाई, वन डे द होल यूनिवर्स विल डाई। क्लियर? तो समय का भी डेथ होगा। डेथ ऑफ टाइम कब होगा? कब मरेगा समय? समय कब मरेगा? अभी मैं बताता हूँ कब मरेगा। नाउ आवर यूनिवर्स इज इन एक्सपेंडिंग पोजीशन। एक्सपेंडिंग पोजीशन, अभी फैलाव की स्थिति में है यूनिवर्स। अब कितना दिन तक फैला है? 14 अरब साल फैलते रहा है, बिकॉज द बिग बैंग टुक प्लेस 14 बिलियन ईयर्स एगो। तो उस समय से अभी तक फैलाव की स्थिति में है और अभी और फैल रहा है। कब तक फैलेगा? अनदर 14 बिलियन ईयर्स it will be remaining expanding।